السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن ایڈوانس کورس کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین بشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ سلائیڈ ثلاثی مجرد کے حساب سے اس کے تو آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے فعل مضارع کا اعراب، ٹھیک ہے؟ جیسے اسم کے اعراب ہوتے ہیں نا آخر پہ پیش، زبر، زیر، اسی طرح آج ہم سیکھیں گے فعل مضارع کا اعراب۔ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کا اعراب رفع، نصب یا جزم، ٹھیک ہے، رفع، نصب یا جزم، یعنی فعل مضارع کے 3 اعراب ہوتے ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ فعل مضارع کبھی حالت رفعی میں ہوگا، کبھی حالت نصبی میں، اور کبھی حالت جزمی مجزوم ہوگا کبھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد آ رہا ہوگا نا، ہم نے بیسک کورس میں پڑھے تھے نواصب المضارع، جوازم المضارع، ہے نا۔ جوازم المضارع کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم، نواصب المضارع کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، اور جب یہ دونوں نہ ہو تو پھر وہ مرفوع ہوتا ہے۔ ہم نے جوازم مضارع نہیں پڑھا، صحیح، نواصب المضارع ٹھیک تک۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیں گے پھر آج انشاءاللہ۔ تو یوں فعل مضارع کے اعراب کی 3 اقسام ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ رفع، نصب اور جزم، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسم کی بات ہوتی ہے تو اسم میں ہوتا ہے رفع، نصب اور جر۔ اس کا مطلب ہے جزم فعل کے ساتھ خاص ہے، اور جر یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ فعل کے آخر پر زیر نہیں آتا اور اسم کے آخر پر جزم نہیں آتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع حالت رفعی میں کب ہوتا ہے۔ فعل مضارع 2 چیزوں کے ساتھ حالت رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رفع 2 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، کون کون سی؟ پہلی ضمہ کے ساتھ، جیسے یضربو، ہے نا، یعنی فعل مضارع کے کچھ صیغوں کے آخر پر پیش ہوتا ہے یضربو۔ پھر اسی طرح اس بات نون اعرابی کے ساتھ، یعنی کہ نون اعرابی کا موجود ہونا، جیسے یضربانی، یضربانی، یعنی وہ فعل مضارع جس میں نون اعرابی موجود ہوں، حذف نہ ہوئے ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور اسی طرح جن صیغوں کے آخر پر پیش ہے تو پیش کی وجہ سے بھی یہ حالت رفعی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسرا اعراب ہے اس کا نصب۔ تو نصب بھی 2 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، پہلی کون سی ہے؟ فتحہ کے ساتھ، جیسے لن یضربا، نواصب المضارع تو پڑھے تھے نا، لن یضربا، ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں فتح آ گیا تو یہ نواصب المضارع منصوب ہے فتح کی وجہ سے، لن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اس کے منصوب ہونے کی کیا ہے؟ اسقاط نون اعرابی کے ساتھ، یعنی جب لن کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتے ہیں، تو چونکہ لن یہ عمل ہی یہی کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر نون اعرابی گرتا ہے لن کی وجہ سے، وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ لن کی وجہ سے فعل مضارع کو نصب دیا گیا ہے،
लई की वजह से नून एराबी अगर गिर गया है नून एराबी, अगर हज़्फ हुआ है तो ये लई की वजह से हुआ, तो लई का काम क्या है, मुजारे को नस्ब देना। तो यूं ये फेल मुजारे जब लई के साथ नून एराबी गिर जाते हैं उस वक्त फेल मुजारे हालत नस्बी में होता है। फिर तीसरी हालत जज्म, यानी फेल मुजारे मजजूम कब होता है, जज्म 3 चीजों के साथ आता है, ठीक है, जज्म 3 चीजों के साथ आता है। पहली क्या है, सुकून के साथ, जैसे लम यजरिब, लम का अमल पढ़ा था ना हमने कि वो फेल मुजारे को आखिर से साकिन कर देता है, पेश को जज्म में बदल देता है। लम यजरिब, तो ये लम की वजह से फेल मुजारे के आखिर को जज्म आ गई, यानी ये साकिन हो गया है, मजजूम हो गया है, ठीक है। इसी तरह इस काते नून एराबी के साथ, यानी जब फेल मुजारे से नून एराबी गिरते हैं लम की वजह से, तब हम कहते हैं फेल मुजारे मजजूम है, क्योंकि हमें मालूम है कि लम फेल मुजारे को साकिन कर देता है। तीसरी सूरत हज़्फ लाम कलिमा, यानी जब मुजारे से लाम कलिमा हज़्फ हो जाए, ठीक है, लम की वजह से, तो उस वक़्त फेल मुजारे हालत जज़म में आ जाता है। जैसे ये है ना लम यदउ, असल में ये लफ्ज़ जो है ना यदउ, ये क्या होता है, यदउ, ठीक है, इसके आखिर पर वाऊ होती है, वाऊ, यदउ, ठीक है। तो ये जो या है ना, ये तो अलामात मुजारे में से है ना, इसको हटा के दाल आइन और यदउ वाऊ, ये 3 हरूफ बनते हैं, ठीक है। तो 3 हरूफ में दाल फा कलिमा, आइन आइन कलिमा, और इसमें वाऊ जो था वो लाम कलिमा था। तो लम की वजह से लाम कलिमा हज़्फ हो गया है, यानी ऐसे अफ़आल, ऐसे कलिमात जिनके आखिर पर अलिफ वाऊ और या होते हैं ना, लम की वजह से वो अलिफ वाऊ या गिरते हैं, और उसी के जरिए ही हम कहते हैं कि फेल मुजारे लम की वजह से साकिन हो गया है। अब यदऊ था ना, यदऊ, वाऊ हस्फ हो गई लम की वजह से, तो जब वाऊ हस्फ होने के बाद जो पीछे रहेंगे वो पूरे का पूरा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर फेल मुजारे जज़म इसको मिली कैसे, लाम कलिमा के हस्फ होने की वजह से। लाम कलिमा फेल मुजारे से हस्फ कब होता है, जब उसके आखिर में या तो अलिफ हो या वाऊ या फिर और कौन सा मैंने अभी बोला था, अलिफ वाऊ और या, मैं ठीक है, या जहन से निकल गया, या ये 3 हरूफ इल्लत हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में मजीद आगे चल के भी पढ़ेंगे। जो हरूफ इल्लत हैं 3 अलिफ वाऊ या, जब फेल मुजारे से पहले लन या लम यानी नवासिबुल मुजारे या जवाजिमुल मुजारे आते हैं, तो फिर हरूफ इल्लत खत्म हो जाते हैं, अलिफ वाऊ या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फेल मुजारे 3 सूरतों में, मरफू, मंसूब, मजजूम। मरफू कैसे, यशरबुल वलदुल माअ, यशरबु। मरफू कब होता है फेल मुजारे, जब फेल मुजारे से पहले ना तो कोई जवाजिमुल मुजारे आए ना ही कोई नवासिबुल मुजारे आए, तो फेल मुजारे मरफू होता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बात कि फेल मुजारे से पहले जवाजिमुल मुजारे ना आए, नवासिबुल मुजारे ना आए, तो फेल मुजारे मरफू है। तो ये आपके सामने यशरबु इसके आखिर पर पेश भी मौजूद है, और यशरबानी यशरबूना इनके आखिर पर नून एराबी भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर फेल मुजारे मरफू है। यशरबु का माना पीता, अल वलदु लड़का, अल मा पानी, लड़का पानी पीता है, अल वलदानी यशरबानी अल मा, तो लड़के पानी पीते हैं, अल औलादु यशरबून अल मा, औलाद वलद की जमा, ठीक है, यानी सब लड़के, तमाम लड़के पानी पीते हैं। तो यहाँ पर फेल मुजारे इसके आखिर में पेश भी मौजूद है, जो कि वाज़ेह तौर पर रफा की अलामत है। फिर यहाँ यशरबानी नून एराबी मौजूद है, यशरबूना नून एराबी मौजूद है, तो ये मुजारे मरफू है।
फिर उसके बाद मुजारे की दूसरी किस्म मंसूब। मंसूब देखिए, अब लन की वजह से लन यशरबल वलदुल माअ, लड़के ने हरगिज पानी नहीं, सॉरी, ये जो लन है ये तो आपको पता है ना ये क्या काम करता है, मनफी मुस्तकबल के साथ खास कर देता है, जिसका माना हो जाएगा लड़का हरगिज पानी नहीं पिएगा। ठीक है, लड़का हरगिज पानी नहीं पिएगा। अल वलदानी लन यशरबल माअ, दो लड़के या दोनों लड़के हरगिज पानी नहीं पिएंगे। अल औलादु लन यशरबुल माअ, तमाम लड़के हरगिज पानी नहीं पिएंगे। अब यहाँ देखें, लन यशरबा फेल मुजारे के आखिर में वैसे तो पेश होता है ना, लेकिन लन की वजह से यहाँ जबर आ गई है, तो अब ये फेल मुजारे मंसूब हो गया है, क्योंकि जबर को नस्ब कहते हैं ना, तो जिस हर्फ पर नस्ब आ जाए उसे कहते हैं मंसूब। और यहाँ पर नूने एराबी साकित है, किसकी वजह से, लई की वजह से, तो इस यहाँ पर नूने एराबी का सकूत लई की वजह से वो बता रहा है कि यहाँ फेल मुजारे मंसूब है। फिर मुजारे की तीसरी किस्म मजजूम। मजजूम कब होता है, जब ऐसे आमिल आ जाए फेल मुजारे से पहले जो उसके आखिर को साकिन कर देते हैं, जैसे ला तशरब अलमा या वलद, ला तशरबिल मा या वलद, ए लड़के तू पानी ना पी, तू पानी मत पी। फेल नहीं याद है ना आपको, फेल नहीं, फेल नहीं आखिर से साकिन होता है ना, फेल मुजारे से बनता है लेकिन आखिर से वो साकिन होता है, किस वजह से, लाए नहीं की वजह से। तो लाए नहीं फेल मुजारे को आखिर से साकिन कर देता है। तो कोई भी ऐसे अवामिल जो फेल मुजारे को आखिर से साकिन करते हैं उनकी वजह से हम कहते हैं फेल मुजारे मजजूम हो गया है। जैसे पीछे मिसाल मैंने आपको दी थी लम के साथ, ठीक है, लम तशरब, लम तशरबा, लम तशरबू, ठीक। इसी तरह यहाँ ला तशरब है, ला तशरब, ला तशरबिल मा या वलद, ए लड़के तू पानी ना पी। ला तशरब, तो साथ मिलाना हो तो ला तशरबल मा, दोनों लड़के तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों पानी ना पियो। ला तशरबुल मा, तुम सब पानी ना पियो। समझ आ गई अब आपको फेल मुजारे के मरफू मंसूब और मजजूम होने की। मजीद हम देखते हैं नवासिबुल मुजारे कौन कौन से हैं। ऐसे हरूफ जो फेल मुजारे से पहले आते हैं और उसको मंसूब कर देते हैं, कौन कौन से हैं, लन, हरगिज नहीं, अन, के, इधन, जब, तो, ठीक है, जब, तो, कई, ताके, हत्ता, यहाँ तक के, ली, ताके। जैसे मिसाल आपके सामने है, अमर तू यज़हबा, वैसे तो होता है यज़हबू, पीछे अन आ गया जो कि नवासिबुल मुजारे में से है, इस वजह से यज़हबू यज़हबा में बदल गया। अमर तू यज़हबा, मैंने उसे हुक्म दिया कि वो जाए, ठीक है, अन का माना के, अमर तू मैंने हुक्म दिया हूँ उसे, अन के यज़हबा वो जाए। फिर इसके बाद है जवाजिमुल मुजारे, यानी ऐसे अवामिल, ऐसे कलिमात, ऐसे हुरूफ जो फेल मुजारे से पहले आते हैं और इसे मजजूम कर देते हैं, कौन कौन से हैं, लम, लम्मा, लामे अम्र। याद है हमने फेल अमर की गिरदानें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि फेल अमर जो है वो दो तरह से बनता है, एक तो मुजारे मुखातब से, दूसरा मुजारे गायब से। तो जब मुजारे गायब से बनाया था हमने, उसके शुरू में हमने लामे अमर लगाया था, जैसे यजरिबू, उससे फेल अमर बनाया था तो ली यजरिब, ली यजरिब, ठीक है, लामे अमर ली। इसी तरह इन शर्तिया, यानी अगर फेल मुजारे से पहले हर्फ इन आ रहा है और ये किसी बात की शर्त के तौर पे आ रहा है तो वहां पर फेल मुजारे मजजूम हो जाता है। इसी तरह लाए नहीं, अभी जो हमने पीछे मिसाल में पढ़ा वो ला फेल नहीं की मिसाल थी ना, ला तशरबिल मा,
तो ला नहीं फेल मुजारे को मजजूम कर देता है। हाँ, जवाज़िमुल मुजारे होते कौन से हैं? ऐसे हरूफ जो फेल मुजारे से पहले आते हैं और उनको मजजूम कर देते हैं। नवासिबुल मुजारे से मिसालें हैं ये आपके सामने, ठीक है। अब ये देखिए, वलन तुकातिलू माई अदुवा, वलन तुकातिलू, तुकातिलू असल में क्या था? तुकातिलूना। तो यहाँ लन की वजह से नून इराबी हस्फ हो गया, तो यहाँ हम कहेंगे ये फेल मुजारे मंसूब है। इसी तरह व अखाफु अन यअकुलहु, अन को हटाएं अगर तो याकुला असल में क्या था? याकुलु, ठीक है, याकुलु। लेकिन अन की वजह से आखिर पे जबर आ गया फेल मुजारे के, तो हम कहेंगे यहाँ पर फेल मुजारे मंसूब है नवासिबुल मुजारे में से अन की वजह से। फिर लियग़फिर लकल्लाह, लियग़फिर, ये कौन सा लाम था बताएं? लामे अमर। नो, लामे अमर नहीं। लामे अमर तो फेल मुजारे को आखिर से साकिन करता है, ठीक है। इस जहां पर आप ये देखें ना, अब देखें फेल मुजारे से पहले मकसूर लाम, लामे मकसूर दो तरीके से आता है। एक लामे मकसूर ऐसा होगा जो इसको आखिर से साकिन कर देगा, तब आप समझिए कि वो फेल मुजारे है। लेकिन अगर फेल मुजारे से पहले ली आ जाए, लामे मकसूर आ जाए और फेल मुजारे आखिर से उसके आखिर पर जबर हो, तो आप समझेंगे कि ये ली लामे अमर वाला नहीं बल्कि नवासिबुल मुजारे में से है, जो फेल मुजारे को नसब देता है। ली की वजह से ही फेल मुजारे के आखिर पर नसब आ रहा है, और इस ली का माना है ताके। फिर इसी तरह ली कई ला यकूना, ली कई ला यकूना। अब यहाँ पर कई, कई आ रहा है, कई, ये भी नवासिबुल मुजारे भी हमने पढ़ा। कई ला यकूना, यकूनू था असल में, फेल मुजारे है ना, अलामत मुजारे या से शुरू हो रहा है। यकूनू था, ला यकूनू, लेकिन पीछे कई की वजह से यकूनू की पेश जबर में बदल गई है, तो यहाँ पर फेल मुजारे कई की वजह से मंसूब है। फिर इसी तरह हत्ता यकूल रसूल, वैसे तो होता है यकूलु, वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना, है ना, मन यकूलु, लेकिन यहाँ पर यकूला क्यों है? क्योंकि ये हर्फ हत्ता नवासिबुल मुजारे में से है, इसलिए यहाँ पर फेल मुजारे को इसने नसब दी है। तो यहाँ हम कहेंगे यकूला ये मुजारे मंसूब है हत्ता की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद जवाजिमुल मुजारे हैं। देखिए अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तुनज़िर, तुनज़िर अलामत मुजारे ता शुरू में आ रही है, तो ये फेल मुजारे है, तो फेल मुजारे का वाहिद का सीगा है ना, तो वाहिद के सीगे के आखिर में पेश होता है। याद है आपको, फेल मुजारे के 5 सीगे ऐसे होते हैं जहां वाहिद के सीगे के आखिर पर पेश होता है। वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर मुखातब, और 2 सीगे मुतकल्लिम के होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम और तस्नीय जमा मुतकल्लिम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीगा वाहिद मुजक्कर मुखातब का है। आमतौर पे ये होना था तुन जीरो, ठीक है, तुम जीरो, लेकिन पीछे लम आ गया तो लम ने फेल मुजारे के आखिर को साकिन कर दिया, तो अब यहाँ पर तुनजिर लम की वजह से मजजूम है, यानी फेल मुजारे लम की वजह से साकिन हो गया है। इसी तरह वलम्मा यअतीकुम, यअती, यअती असल में था यअती, इसके आखिर में
یا آ رہی تھی جو لام کلمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا تو علامت مضارع میں سے ہے نا، پھر یہ حمزہ، تا اور یا جو اس کے آخر پہ آ رہی تھی، یہ تین حروف سے مل کے ہی کلمہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب فعل مضارع کے آخر میں الف، واو یا یا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ نواصب المضارع یا جوازم المضارع کی وجہ سے وہ حرف حذف ہو جاتا ہے، تو اس حرف کا حذف ہونا ہی مضارع کو منصوب بناتا ہے، مضارع کو مجزوم بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاتی میں سے یا حذف ہوئی لما کی وجہ سے، تو لما جوازم المضارع میں سے ہے، تو یہاں پر فعل یاتی لما کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، مجزوم ہو گیا ہے۔ اسی طرح وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا اصل میں یہ ہے لِيَجِدُوا، ٹھیک ہے، لِيَجِدُوا، تو اس سے پہلے واو آ گیا ہے، اس لیے اس لام امر کا جو زیر تھا وہ حذف ہو گیا، ویسے یہ تھا لِيَجِدُوا، اب اس لام امر نے کیا کیا، یجدون ہے نا، یجدو یجدان یجدون، یجدون کے آخر سے نون گرا دیا کیونکہ وہ نون اعرابی تھا جو لام امر کی وجہ سے گر گیا، تو یہاں پر یجدو مضارع مجزوم ہے لام امر کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اب یہاں لا تقربا، اصل میں تقربا کیا تھا، تقربانی، ٹھیک ہے، تقربانی، لیکن لا کی وجہ سے نون اعرابی حذف ہو گیا، تو یہاں پر اب تقربا لا نواسب المضارع ہونے کی جوازم المضارع ہونے کی وجہ سے تقربا فعل مجزوم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اب آپ کا کام آ گیا، سبق ہمارا آج کا اتنا ہی تھا کہ فعل مضارع کی تین صورتیں ہوتی ہیں، تین حالتیں ہوتی ہیں، رفعی، نصبی اور جزمی مجزوم۔ فعل مضارع کبھی حالت رفع میں، کبھی حالت نصب میں اور کبھی حالت جزم میں ہوتا ہے، اور یہ کب کب اور کیسے ہوتا ہے، یہی آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اسی سبق کے مطابق آپ کا کام ہے ہاتی الامثلہ من القرآن الکریم للفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم، ٹھیک، یعنی قرآن کریم سے آپ نے فعل مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم کی مثالیں تلاش کرنی ہیں اور گروپ میں شیئر کرنی ہیں۔ واجب المنزلی، واجب کا معنی سمجھتے ہیں، فقہ اصطلاح میں فرض ہے، یہ فرض، ٹھیک ہے، یہ کام، اور فرائض میں ان کو پورا نہ کرنا، فرائض کو چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک۔ سبق کی سمجھ آ گئی ویسے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ گئی۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم اجمعین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔